عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کیا آپ بچوں کی اسکول صرف بچوں سے کام کروانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ دو الگ ویڈیوز آئی ہیں، وہ دکھاؤں گا۔ قبائلی خاتون کو کس طرح باندھ کر کے مارے جانے کی ویڈیو ہے، کہاں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اور وہیں پر بغیر سڑک کے راستے، بغیر سڑک کے اسکول 1997 سے اب تک کیسے چل رہا ہے؟ تعجب خیز بات ہے کہ 5 اسٹار جیسے جو ہے دفتر بنا لیے کانگریس اور دیگر پارٹیوں کی، بی جے پی پارٹیوں کے، جتنے بھی سطح میں تھے، لیکن اسکولز کا وہی حال ہے۔ کیا واقعی میں گورنر کوشیاری نے مہاراشٹریوں کو یا پھر مراٹھی بولنے والوں کو دھمکی دی ہے یا وارننگ جاری کی ہے مہاراشٹریوں کو؟ کیا ہے حقیقت، وہ بھی بات ہوگی۔ تو کرناٹک کے وزیر نے پھر سے دھمکی دی اور کہا کہ انکاؤنٹر کا وقت آ گیا ہے۔ اور وہیں پر ایک بار پھر سنگھ پریوار کے کارکنان کے گھر میں اگر پولیس گھسیں گے تو پھر جو ہے اچھا نہیں ہوگا کہہ کر کے کس نے دھمکی دی ہے ہندوتو تنظیم نے۔ نابالغ بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی مخالفت کرنے پر ماں بیٹے کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور بھی چیزیں ہیں، سب تفصیلات کے ساتھ بیان کروں اور تبصرہ کروں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اور مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کریں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ایک روح پرور منظر ہم لوگ دیکھ آتے ہیں، وہ ہے غلاف کعبے کا تبدیلی کا جو روح پرور منظر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمیشہ سے جو غلاف کعبہ کو بدلنے کا جو وقت ہوتا ہے یا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ جو ہے اس کو 1 محرم کو جو ہے یہ منظر دیکھنے کو ملا، یہ روح پرور منظر۔ اور کسوہ ناظرین گرامی دنیا کا مہنگا ترین غلاف ہے، 65 لاکھ ڈالر کی لاگت سے بنایا جاتا ہے۔ 670 کلو ریشم پر قرآنی آیات کی کڑھائی سونے چاندی کے دھاگوں سے کی جاتی ہے۔ 120 کلو سونا اور 100 کلو چاندی استعمال کی جاتی ہے۔ 200 افراد پر مشتمل ٹیکنیکی عملہ غلاف کی تیاری کا کام انجام دیتا ہے، اور یہ پورا سال اسی میں لگے رہتے ہیں، یہ 200 کا 200 عملہ بھی۔ ناظرین گرامی، اس مرتبہ جو ہے 9 ذی الحجہ کے بجائے 1 محرم کو نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ نئے سال کی مبارکبادی ہے آپ تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا اسلامی سال تمام امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ بہرکیف 1 محرم کو جو ہے غلاف کعبہ کا یہ جو ہے منظر سامنے آنے کے بعد اس وقت الگ الگ ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں، سوچا کہ آج جو ہے اپنی خبر کا آغاز یہیں سے کروں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے ناظرین گرامی، بھارت میں یہ جو سرکاری پرائمری اسکولز ہوتے ہیں وہ صرف اس وقت جو ہے خبروں میں ہی شائع رہتے ہیں۔ برسات کا جب مہینہ آتا ہے تو راستوں کی کیا صورتحال بنتی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب ایک اور اسکول سے ویڈیو آ رہی ہے ناظرین گرامی، اور وہ یہ ہے کہ بچوں سے کام کروایا جا رہا ہے، کھدوایا جا رہا ہے، لکڑیاں پھڑوائی جا رہی ہیں، اور جب اس کے پرنسپل سے بات ہوتی ہے تو وہ کچھ الگ ہی تھیوری بیان کرنا لگتا ہے۔ یہ دیکھیے بہار کے جہان آباد کا ایک سرکاری اسکول ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بہار کے کچھ مناظر آپ کو دکھائے تھے، جیسے کہ کھلے آسمان میں اسکولز چلائے جا رہے تھے، اب یہاں پر جو ہے بچوں سے کام لیے جا رہے ہیں۔ اب پرنسپل کی وضاحت آپ ضرور سنیں کہ کس طرح سے جو وہ ہچکچاتے ہوئے بیان دینے کی کوشش کریں، آپ اس کو دیکھیں۔ نہیں کام نہیں لیا جاتا، جیسے سر صفائی ابھیان ہے، چاہے پھول پتی لگانا ہے یا پٹون کرنا ہے، یہ سب کام کرواتے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں دوارا کام لیا جا رہا ہے،
देखिए सर, बाल संसद मीना मन थोड़ा बहुत इधर उधर ईटा को हम करवा देते हैं, इसमें कोई नहीं, चूंकि उसकी एक्टिविटी को जानना बच्चे है। यहाँ पढ़ने के लिए दिन भर के लिए नहीं है सर, जब क्लास आवर लगता है, हमारा टीचर भी है, उनसे पूछा जाए, कभी कुछ नहीं ऐसा है। अच्छी बताइए, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं या काम करने? पढ़ने के लिए आते हैं तो काम थोड़ी उस समय लेते हैं सर, जब पार्ट टाइम कोई कभी होता है ना, तब ऐसा दिन भर वर्क नहीं है कुछ हो। तो आपको ही नहीं लगा कि बच्चे लोग से काम कराना? जी नहीं, काम कराना नहीं सर, चूंकि बरसात का समय है, आदमी मिल नहीं पा रहा था, तो बच्चा लोग आके हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग करके, टीचर हम लोग मिल करके अथी कर दिया। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद एक और वीडियो आप देख सकते हैं चंदौली की। ये देखिए, 1997 से ये स्कूल जो चल रही है बगैर सड़क के चल रही है, और 1997 से मतलब आप हिसाब किताब लगा लें, तब से न जाने कितने बच्चे पढ़ कर के यहाँ से फारिग हो गए और कॉलेजेस में चले गए होंगे, लेकिन स्कूल की हालत अभी भी वही है। इसको पेश करते हुए बहुत सारे पत्रकार ने अपने अपनी जगह पर इसको संतोष जायसवाल ने इसकी रिपोर्ट की है चंदौली से, और इसको पेश करने की कोशिश की। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर मुख्तलिफ पार्टियों के आप दिल्ली में उनके हेडक्वार्टर्स देखेंगे, उनके दफातर देखेंगे, तो लगता है कि 5 स्टार होटल भी उनके सामने मांद पड़ जाते हैं, और जिनके वोटों से ये लोग जो है अपने पार्टियों की हुकूमत करते हैं और अपने पार्टियों को मुस्तहकम करते हैं, उन लोगों की स्कूल्स का और उन लोगों की हालत यह है कि जो है बच्चों को कीचड़ में चलते हुए और न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए स्कूल जाना पड़ता है। कहते हुए जो है संतोष ने अलग अंदाज में इसकी रिपोर्टिंग करने की कोशिश की है। ये तफसीलात इसलिए रखा जाता है नाज़रीन गिरामी कि अब नेशनल मीडिया इन बुनियादी ज़रूरियात को सामने नहीं रखता लोगों के सामने, वो तो सिर्फ चापलूसी में लगा हुआ है, और एक बयान के पीछे हिंदू मुस्लिम इस तरह के कोई अगर मिलते हैं। अब देखिए कि जो है एक नंगा रणवीर को लेकर के जिस दिन अहम तरीन मौज़ूआत थे, उसको छुपाने के लिए रणवीर का मौजू लेकर के सारा दिन बहस किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब मौज़ूआत हैं जो इस वक्त चाहते हैं, और ज़ाहिर सी बात इसमें गलती आवाम की भी है। मकामी सतह के प्रॉब्लम्स बयान करते हैं तो देखते नहीं हैं, और जब लड़ने भिड़ने की बातें होती हैं तो व्यूवर्स बढ़ जाते हैं। ऐसी जो है इस वक्त मानसिकता भी बन गई है आवाम की भी और नाजरीन की भी। बहरकैफ आइए, मंगलूर में इस वक्त मुस्लिम कमेटी ने जो है बायकॉट कर लिया है जो पीस मीटिंग बुलाई गई थी कर्नाटका की सीएम की जानिब से। जाहिर सी बात है कि आप कर्नाटका के सीएम हैं बोम्माई साहब, और मंगलूर के आसपास के इलाके में 2 मुसलमानों का कत्ल हुआ, और एक बीजेपी लीडर के घर में जाकर के पूरी तरह से मिजाज पुरसी कर रहे हैं और मुसलमानों के घरों में गए नहीं हैं। पहले से ये साफ और वाज़ेह तौर पर इनकी मानसिकता बयान की जा चुकी है। यही वजह है कि जो है पीस मीटिंग में जो है मसूद जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि योगी मॉडल जो है इम्प्लीमेंट करने का जिन्होंने दावा किया या फिर धमकी दी, वो लोग आखिर पीस मीटिंग में किस तरह उनके साथ बात हो सकती है, ये कहते हुए जितने भी मुसलमानों की कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, वो सीएम बोम्माई की जो पीस मीटिंग बुलाई गई थी उसको बायकॉट किया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में इस वक्त जो है ख़ुद बीजेपी कारकुनान जहाँ बीजेपी से नाराज़ हैं, वहीं पर नाज़रीन गिरामी मुसलमानों को धमकी देने की भी कोशिश हो रही है। जहाँ कर्नाटक के एक वज़ीर ने धमकी दी कि अब इनकाउंटर का वक्त आ चुका है। जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी लीडर परवीन नेट्टारू के कत्ल से पार्टी लीडरान में जो इश्तियाल देखने को मिल रहा है, मुलजिमीन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। और कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने पहले ही ऐलान कर दिया कि रियासत में योगी मॉडल नाफिज किया जाएगा। अब रियासती हुकूमत में वज़ीर अश्वित नारायण ने एक कदम आगे बढ़कर इनकाउंटर किए जाने की बात कह डाली। अश्वित नारायण ने धमकी आमेज़ अंदाज में कहा कि रियासत में अब इनकाउंटर का वक्त आ गया, ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही वो कहते हैं यकीनी बनाया जाएगा कि मुस्तक़बिल में ऐसे कत्ल के वाक़यात कभी पेश ना आ जाए। एक तरफ धमकियाँ नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब खुद जो है चूँकि एक मुस्लिम शख्स का कत्ल हुआ है, इस सिलसिले में जो है पुलिस बहुत सारे अलग अलग एंगल से इस कत्ल को देखने की कोशिश हो रही है। ऐसे में इस वक्त जो है पूरी तरह से पुलिस को भी धमकियां दी जा रही हैं, हुकूमत को भी धमकियां दी जा रही हैं हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से। जी हाँ, मकामी एमएलए भरत शेट्टी ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर संघ परिवार के कारकुनान के घर में घुस करके पकड़ धकड़ हुई और तहकीकात के नाम पर हिरासत में लेने की कोशिश हुई तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे, बख्शा नहीं जाएगा। ये कहते हुए पुलिस के कामों में वे अड़चने डालने की कोशिश की जा रही है।
नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो कत्ल हुआ था फाजिल का, CCTV कैमरा में सारी चीज़ जो है, जिन्होंने हमले किए और जिस तरह से हमले हुए, सब के सब जो है वो महफूज हो चुके हैं। उसमें साफ़ और वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि सब जिन लोगों ने हमला आवर थे वो सबका ताल्लुक़ संघ परिवार से था, हिंदुत्व तंजीमों से था। बहरकैफ अब इसको किसी और शक्ल देने की कोशिश हो रही है, शिया सुन्नी में आपसी झगड़ों की वजह से। ज़ाहिर सी बात है कि जो है ख़ुद के बचाव के लिए जो है मीडिया में कुछ ऐसी इश्यूज़ भेज दिए जाते हैं जो मीडिया जो है लोगों के जहनों को परागंदा करने की कोशिश करता है। ऐसी सूरत हाल इस वक्त जो है शिया सुन्नी को लेकर के बनाने की कोशिश हो रही है फाजिल के कत्ल केस में, जबकि CCTV कैमरे में जो चेहरे महफूज किए जा रहे हैं उसके सिलसिले में बताया जा रहा है कि वो पहचाने चेहरे हैं और मरने से पहले खुद जो है मख्तूल ने इस बात का इतराफ़ किया था कि उन पर हमला किन लोगों ने किया है। बहरकैफ देखना है कि इन तमाम धमकियों के बीच में हुकूमत और पुलिस किस तरह की कार्रवाई करते हैं, तमाम वो चाहे BJP लीडर के कातिलों के ख़िलाफ़ हो या फिर जो है फाजिल या मसूद के कातिलों के ख़िलाफ़। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं कि किस तरह से गवर्नर कोश्यारी ने क्या वाकई में मराठियों को या महाराष्ट्र में बसने वालों को धमकी दी है, या ये कहने की कोशिश की है कि मराठी सिर्फ जो है गुजराती होने की वजह से महाराष्ट्र जो है वो इक़्तिसादियात में तरक्की कर रहा है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हवाले से एक बयान देकर बुरी तरह घिर गए। साथ ही उन्होंने अपने बयान से बाहरी बमुकाबला मराठी के मसले को फिर हवा दे दी है। मुंबई के अंधेरी में एक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर कहा कि अगर महाराष्ट्र बिलखुसूस मुंबई और थाने से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाता है तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं और मुंबई मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी भी नहीं रहेगी। अब गवर्नर से पूछा जा रहा है कि आया वो मराठियों को दूसरी रियासतों के लोगों से कमतर समझते हैं। गवर्नर कोश्यारी के बयान की शिवसेना ने पुरजोर मुखालिफत की है। पार्टी लीडर संजय रावत ने उसे मराठियों के वक़ार से वाबस्ता करते हुए रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा है और उनसे गवर्नर के बयान की मजम्मत करने को कहा है। बयान की वीडियो शेयर करते हुए संजय रावत ने लिखा कि BJP स्पॉन्सर्ड वज़ीर आला के इक़्तिदार में आते ही मराठियों की तौहीन की जाने लगी है। वज़ीर आला शिंदे कम से कम गवर्नर की मजम्मत करें, ये मेहनती मराठियों की तौहीन है। ये कहते हुए जो है अब ये जो कोश्यारी का बयान है मराठी बमुकाबला बाहरी कर दिया गया है। अब चाहें तो इसको आवाज़ के साथ सुन सकते हैं। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई थाने यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से अलग अलग जुल्म सितम की कहानियाँ सामने आती हैं। देखिए एक वीडियो हम तक पहुँची है और वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि खातून को हम लोग उस पर जो पीटा जा रहा है वो सारी वीडियो नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ये बांधने का मंजर देख लीजिएगा। और ये वीडियो पूरी बहुत ही भयानक है और बुरी तरह से मारा जा रहा है कबाल खातून को मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा करके। इस वीडियो को शेयर करने के बाद बहुत सारे लोगों ने तबसरा किया है कि आखिर भारत में हो क्या रहा है, क़ानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं, अदलिया कोई है या नहीं, हुक्मरानी किसी की है या नहीं, ये सब कुछ किस कदर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो आती है जहाँ इंसानियत शर्मसार होती है। कभी पुलिस जो है जुल्म करती हुई नज़र आती है तो कभी आवाम लिंचिंग करते हुए नज़र आते हैं। और भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों से मुख्तलिफ़ बस्तियों से हर दिन इस तरह से जुल्म सितम की कहानी आ रही है। आखिर भारत में अदलिया का निज़ाम, हुक्मरानी बाकी है या नहीं, ये कहते हुए जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। ऐसे ही नाज़रीन गिरामी, देवबंद से भी एक खबर आई है कि नाबालिग बेटी के साथ बदसलूकी किए जाने की मुखालिफत करने पर 2 नौजवानों ने माँ बेटी को मार पीट करके ज़ख्मी कर दिया है। इसकी वीडियो तो सामने हम दिखा नहीं सकते, अलबत्ता इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि शहर के मोहल्ला हरिनगर की रहने वाली खातून ने कोतवाली में ये शिकायत दर्ज की है कि उसकी 12 साला नाबालिग बेटी महल्ले की एक दुकान पर घरेलू सामान खरीदने गई थी। इस दौरान महल्ले के 2 नौजवान सड़क पर खड़े थे जिन्होंने उनकी बेटी को अकेले देखकर उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। फहश फ़िक्रे से और डरी सहमी लड़की घर पहुंची और इस बात की जो इत्तला दी तो जो है घर वालों ने जाकर के बेटे आशू जो उनका बेटा था उसके साथ मुलजिम के घर जाकर के शिकायत की तो मुलजिमान ने न सिर्फ जो है इस पर माफ़ी मांगी बल्कि लाठी डंडों से उन पर हमला करते हुए बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि आप छेड़खानी की मुखालिफत करते हैं तो उसी पर जो है बरसने लग जाता है और इसी सूरत हाल हर जगह बनाई जा रही है। वह नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और यहाँ इस तरह की ख़बरों की भरमार है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،